चलो। प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। आशा है आप सभी खुश होंगे। So I welcome you in Jesus' living name, and I am sure that all of you are happy. हमारी खुशी जो है वो भावनाओं पे केंद्रित न होनी चाहिए। Our happiness shouldn't depend on our feelings. स्वाभाविक है, भावनाएं हमें दी गई हैं। Of course it is natural because they have been given to us. परंतु जीवन जो है भावनाओं के आधार पर नहीं जिया जा सकता है। But we cannot live our life based on our feelings. तो आइए आज के अध्ययन के लिए हम परमेश्वर के कलाम से So for today's study, we will read from God's word. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। So we will go to John 12. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9th चैप्टर। It's the 9th chapter. हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर के 12 वचन तक। And from the first to 12th verse we are going to read. वैसे हम इस पूरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। So we are going to meditate on the entire chapter actually. परंतु हम पहले उसके इस भाग को पढ़ेंगे। But we are going to read this portion first. तो मैं पढ़ता हूँ। So I'll start reading. जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। Jesus answered, Neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। I must work the work of him that sent me while it is day. वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। The night cometh when no man can work. जब मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। As long as I am in the world, I am the light of the world. ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर। When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle and anointed the eyes of the man with the clay. उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। And said to him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? The neighbors therefore, and they that before had seen him, he was blind, said, It is not this that he sat and begged. कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। Some said this is he, others said he is like him, but he said I am he. तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? Therefore they said unto him, How were thine eyes opened? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received sight. उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। Then they said unto him, Where is he? He said, I know not. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। Father God, we thank you, O Lord, and we come unto your feet, O Lord. प्रभु, हमने जो आपके कलाम से वचन से पढ़ा, And Father, whatever we read from your word, O Lord, विनती करते हैं प्रभु तो इसके द्वारा हमें सिखा and teach us through this, O Lord, और हमारे आत्मिक आंखें खोल। and open our spiritual eyes, O Lord. वचन के पाठ पर और अध्ययन पर आपकी आशीष हो।
And while we, as Father, bless the reading and the meditation, O Lord. प्रभु यीशु के जीवित नाम से प्रार्थना करते हैं, We pray in Jesus' living name. आमीन। Amen. यूहन्ना का सुसमाचार जो अभी हमने 9वां अध्याय पढ़ा है, इसमें So John chapter 9, what we read. इसमें यीशु मसीह ने एक बड़ा ही चमत्कार किया है। So Jesus has done a very big miracle here. और ये कोई सामान्य चमत्कार नहीं था, ये असामान्य चमत्कार था। And it was not an usual miracle, but rather an unusual one. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व, So before Jesus' birth, or 700 years before Jesus' birth, 35 का 5। Okay. Should I read? ये Okay. So then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf shall be unstopped. अंधों की आंखें खोली जाएगी। इसी तरह वर्णन जो है हम 42 के 7 में भी पढ़ते हैं कि जब मसीहा आएगा तो ये चिन्ह होगा कि वो अंधों की आंखें खोलेगा। ये एक मिरेकल, एक साइन जो था यशायाह के द्वारा पहले ही बता दिया गया था। So even in 42 chapter also we find that it was a sign. The prophecy said that the eyes of the blind will be opened. It would be a sign of the Messiah's coming. और यीशु मसीह जो ये चमत्कार करता था वो किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता था। And Jesus always did these miracles to fulfill someone's needs. वो किसी को प्रभावित करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए वो नहीं करता था। He never did it to impress others. उसका एक आत्मिक संदेश होता था उसके पीछे। There was always a spiritual message behind it. और कई बार जो है वो चमत्कार के द्वारा ही आत्मिक संदेश लोगों को देना चाहता था। And many times through his miracles, he tried to give his spiritual message to people. शारीरिक चंगाई से बढ़कर जो है आत्मिक चंगाई को महत्व दिया जाता है। And as we know that the spiritual healing is more important than the physical healing. क्योंकि शारीरिक मनुष्य जो शरीर है वो एक दिन तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। Because as we know this body is going to get over or will be finished. तो यदि उसने चंगाई पाई हो चाहे नहीं पाई हो, So even if he didn't receive healing or received, परंतु उसके जीवन में मृत्यु आएगी। but death would certainly come into his life. परंतु यदि उसकी आत्मिक चंगाई हो गई है, But if he is spiritually healed, तो वो मृत्यु के पश्चात अनंत काल का जीवन पाएगा। so then he will get an eternal life after death. आत्मिक चंगाई उसके उद्धार को दिखाती है कि उसका उद्धार हो जाएगा, पापों की क्षमा हो जाएगी। And spiritual healing shows that he has got his salvation and his sins are forgiven. क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। Because he has accepted Lord Jesus Christ as his savior. क्योंकि कई बार चंगाइयाँ होती है, लोग चंगाई पाते हैं, परंतु वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। There are many times that miracles happen or healings happen, but people do not accept them, Christ as their savior. और वो चले जाते हैं। And then they go. और जब कभी बीमार होते हैं फिर आ जाते हैं। And whenever they are sick, they come back. तो इस तरह से वो अपनी आत्मा को खो देते हैं, अपने अनंत काल को खो देते हैं, वो उद्धार नहीं पाते हैं क्योंकि वो यीशु को ग्रहण नहीं करते। And that is the reason they lose their eternity, they lose their salvation because they do not accept Lord Jesus Christ. इस अध्याय में जो हमने भाग पढ़ा है, So today what we read, the portion we read, यहाँ पर 4 लोगों को हम देखते हैं, 4 वर्ग हैं। and we see 4 kinds of people here. पहला जो है वो स्वयं यीशु मसीह और उसके चेले हैं। The first group is people is Jesus and his disciples. दूसरा है जन्म का अंधा भिखारी। And the second group is made up of this person who was blind from birth. और तीसरा है उसके माता पिता, पड़ोसी, समाज। And the third group of people is the society, his parents, and even his people around him. और चौथा वर्ग है फरीसी, जो धर्म के अधिकारी थे, जो धर्म के ठेकेदार माने जाते थे। And then we see Pharisees who were considered to be owners of religion. और वो उनके बीच में आदरणीय थे। And they were highly respected among them. तो यहाँ पे
प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जन्म के अंधे को जाते हुए जब वो जा रहा था उसने जन्म के अंधे को देखा. So here the word says that when he saw this man blind from his birth, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, so his disciples asked him, "Oh Rabbi, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? who had sinned, this man or his parents, because he is born blind?" चेलों के पास अक्सर सवाल रहते थे, And there were many questions. The disciples had many questions, परंतु यीशु के पास उनका जवाब होता था. but Jesus always had answers for them. हमारे पास भी कई सवाल होते हैं Even we have many questions, और हमारे सवालों का जवाब यीशु है. but the answer to our questions is यीशु Jesus. मसीह ने जब उससे कहा, उन्होंने जब कहा So then he said, कि क्या इसके माता पिता ने पाप किया था या इसने? so the disciples said that who had sinned, his parents or he himself? माता पिता की बात तो समझ आती है कि माता पिता पाप कर सकते हैं तो उसके परिणाम हो सकते हैं, परंतु ये जो बच्चा अभी संसार में आया ही नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसके विषय में ये पूछ रहे हैं कि क्या उस बच्चे ने पाप किया था जब ये माता के गर्भ में था? So now we can certainly womb and maybe it was a result of that sin. But what about the child? Can such a small child sin? क्योंकि यहूदी विचारधारा ये थी उनकी, Because the Jewish thinking was somewhat like this, जो बाइबल सम्मत नहीं थी, ये उनके अपने विचार थे, and which was not actually according to the Bible, it was their own thoughts. वो ऐसा सोचते थे कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ में आता है, तो बच्चा जो है पेट में माँ को लाते मारता है. So they used to think that a child when he is in womb and he kicks his mom, तो उन्हें लगता, वो उसको पाप मानते थे कि उसने अपनी माँ को लाते मारी है. and they used to feel that it is something very holy that he kicked his mom. और यहूदी एक विचार ये भी रखते थे कि जब अब बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है, जब उसकी आत्मा उसके पेट में आती है, And they even felt that when the child spirit comes into the womb, तो शैतान जो है उसको छू लेता है और वो पापी हो जाता है. and while coming, Satan touches this child's soul and he becomes a sinner. एक विचार चेलों के मन में ये था, एक ये दृष्टिकोण था उनका. And even the disciples had this perspective, ये उनकी अपनी विचारधारा, अपनी परंपरा थी. which was their own tradition, their own thinking. और एक परमेश्वर का वचन भी था जो निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय 5वें पद में लिखा है And Exodus 25 we read, कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं की जो दंड है माँ का पिता का, वो मैं तुम्हारे बेटे पोते पड़पोतों को दूंगा. so where it says that the grandfathers and or rather ancestors' sins would come on the next generations. तो उनके विचार ये थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे स्पष्ट किया But Jesus made it very clear here कि न तो इसने पाप किया है न उसके माता पिता ने. so neither has he sinned nor his parents. क्योंकि हम अगर निर्गमन 20:6 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करूँगा. Because Exodus 6 says very clearly that for 1,000 generations I would bless those who love me. तो वचन में समझे कि उसने जो कहा कि मैं माँ बाप का सजा जो है बेटों पोतों पड़पोतों को दूंगा, अर्थात जिस प्रकार से माँ बाप ने जो है अन्य जाति देवताओं की उपासना की है, यदि उनकी पीढ़ियां भी उसी तरह करते रहेंगी तो उन पे भी दंड आता रहेगा. So what he sorry. Yeah, please. बोलिए. Yeah. So what he meant was that the way Israelites have offended God and have worshipped the idols, if the children also do, he would bring the same punishment on them. क्योंकि बच्चे जो है वही माँ बाप को जो करते देखते हैं वही वो करते हैं. Because children do what they see their parents doing. तो ये जो सिलसिला है माँ बाप से बच्चों के आगे बच्चों में चला जाता है. So this thing goes, it keeps on going through the और उन next पर उसी generation. प्रकार का दंड आता रहता है. And the same kind of punishment keeps coming on them. परंतु जो बच्चे अपने माँ बाप की उस बुरी आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, बुरे कामों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने लगते हैं, तो लिखा है कि मैं हजारों पर दया करता हूँ. So those kids who stop doing what their parents were doing wrong, if they start obeying God, they are blessed for the next 1,000 generations. यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय 4 में लिखा है, If we see Ezekiel 18:4,
कि जो प्राणी पाप करे वही नाश होगा। that only the person who sins would be destroyed. तो कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में यदि आज्ञाकारिता है तो हमारे ऊपर वो दंड नहीं है। So what it really means is that if we have obedience in our life, we do not have any condemnation and we will not be punished. और ये आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने यहूदियों को दी थी, न कि अन्य जातियों को। And these commandments were given to Israelites or Jewish people, not Gentiles or other people. तो इस तरह से प्रभु के चेलों ने अपना जो सवाल उसके आगे रखा था, प्रभु ने उसका जवाब उन्हें दे दिया। So the question they posed in front of Jesus, Jesus answered that question. हमारे भी इस कल्चर में, जिस हम देश में रहते हैं भारत में, हमारे भी देश में जब किसी के जीवन में हम किसी ऐसी बात को देखते हैं कि वो शारीरिक तौर पे अपंग है या ब्लाइंड है, तो कई लोग ऐसा कह देते हैं उसे कि भाई इसके पुराने जन्म के पाप होंगे। So in our culture also we see that whenever we see a disabled person or a person who's blind, we tend to say that he must have sinned in his previous life. परंतु जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि जो प्राणी पाप करेगा वही नाश होगा। But when we read in the scriptures, we know that only the person who sins will be destroyed. क्योंकि बाइबल नहीं कहती कि मनुष्य का बार बार जन्म होगा। Because the Bible doesn't say that a person takes birth or there is rebirth. क्योंकि इब्रानियों का खत उसका 9वां अध्याय और 22 में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। Because Hebrews 9:22 says very clearly that a man is born only once and dies once. And then there is, I think. और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने लिखा, उसने भूमि पर थूका और मट्टी सानी और आंखों पे उसे लगाया गया। And when it was applied on the blind man's eyes, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 2वां अध्याय और 7वां पद पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, and yeah, when we read that in Genesis 2:7, वहाँ पे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से बनाया। And we know that God made us with the dust of the earth. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये करने के द्वारा ये बता रहा था उन यहूदियों को कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया वो मैं हूँ। And here God was trying to tell people, the Jewish people, that I am the creator who created you out of the dust. अब हम 4 जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो 4 हमने लोग वर्गीकरण कर दिया था, जिनका कि यीशु मसीह और चेले। And now there are these 4 kinds of people which we talked about. हमने इनके जीवनों के प्रभाव के बारे में अब हम देखेंगे। And here we will see the influence in their lives. पहले हमने देखा चेले जो है, First we see that the disciples. और दूसरा अब हम देखते हैं कि वो अंधा व्यक्ति जिसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। And then we see the blind man and how his life was influenced. सबसे पहला तो उसकी आंखें खुल गई। The first thing is his eyes were opened. और वो देखने लगा। And he started seeing. उसने परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि को देखा। And he saw the beautiful creation of God. और दूसरा हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को एक व्यक्ति के रूप में पहचाना उसने। And he recognized Jesus as a person. जब हम 9:11 को पढ़ते हैं, When we see 9:11, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मट्टी सानी, यीशु नाम। And he said, a man named Jesus made this clay. उसने यीशु मसीह के मनुष्यत्व को, कि उसकी जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसको उसने पहचाना। So he recognized the humanity of Jesus. कि मैं जन्म से अंधा हूँ, जन्म से अंधा था। That I was blind from birth. और मैं भीख मांग रहा था। And I was begging. और मेरी जीवन की दशा एक दयनीय दशा थी। And I had such a pathetic life. और ये यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मुझ पर बड़ी दया की। And a person called Jesus took mercy on me. ये वास्तव में एक मानवता है, इसके अंदर सही मानवता है, ये सच्चा इंसान है। So here we see, and he recognized that he is a true man. और तीसरी बात उसके जीवन की हम देखते हैं। And the third thing which we see in his life is 9:17 में in 9:17 उन्होंने उस अंधे से फिर कहा,
And they told the blind man उसने तेरी आंखें खोली है, that he opened your eyes. तू उसके विषय में क्या कहता है? What do you say about him? उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। And he said he is a prophet. अब उसकी समझ और उसकी आत्मिक दृष्टि और विकसित हो गई और वो उसने उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में समझा, जाना। So now his understanding increased and he understood him as a prophet. और उसके अंदर अपनी गवाही देने का हियाव आ गया था। And he became bold to give his testimony. क्योंकि जब लोगों ने उससे कहा Because when people told him कि तेरी आंखें कैसे खुल गई, that how did your eyes open, or asked him, तब उसने यीशु मसीह ने जो उसके साथ किया था वो सारी बातों को उसने कह दिया। so he told everything what Jesus did with him. और उसने बड़े हियाव से ये कबूल किया कि मैं वही हूँ। And with a lot of boldness he accepted that I am that man. और उसने अपने आप को छिपाया नहीं। And he didn't hide himself. और उसने अपने आप को उनके सामने निर्भय होकर के गवाही दिया, यहाँ तक कि फरीसियों के सामने भी। And even in front of Pharisees, very boldly he gave his testimony. उसके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास आ गया था, एक जागृति उसमें आ गई थी। So there was a certain revival which came into him. He was confident suddenly. और वो महसूस कर रहा था कि उसके ऊपर जो ये आश्चर्य कर्म हुआ है जिसकी उसने खुद गवाही दी, जब हम And he knew that the miracle which has happened. वो कहता है 9:32 में, In 9:32 he says जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया that it was never heard from the beginning of the world कि जन्म के अंधे की आंखें खुली हो। that a man born blind. साल पहले Friends, 2000 years back, किसी जन्म के अंधे के लिए कोई भी इलाज नहीं था। there was no treatment for a person who was born blind. ऐसा कोई उसके लिए उपचार नहीं था जिससे उसकी जन्म की आंखें ठीक हो जाए। There was no treatment available for such a person. आज भी जो है जन्म के अंधों की आंखें नहीं ठीक हो सकती। Even today, the eyes of people born blind can't be opened. तो इतना बड़ा जो चमत्कार उसके जीवन में हुआ था, So the miracle which took place in his life, उसने उसके बाहरी रूप को ही नहीं, उसने उसके आंतरिक रूप को भी बदल दिया था। so that had changed not only his outer life but the inner one also. उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई थी। His spiritual eyes were also opened. वो जो आराधनालय में जाता था When he used to go to the temple, और जो यहूदी रबी जो उसे शिक्षाएं देते थे, and the Jewish rabbis used to teach him, अक्सर रबियों ने जो है अपनी विधियां, अपनी शिक्षाएं बना ली थी। and these rabbis had their own traditions and their own thinking. अगर हम मत्ती का 15वां अध्याय और उसका 3रा पद और 9वां पद पढ़ें तो वहाँ हमें इस बात का पता चलता है। If we read Matthew 15 and 3rd and I suppose one more verse, 3रा और 9, 3rd and 9, 3rd and 9th verse, प्लीज पढ़िए। and we see here, and behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. मत्ती उसका 15वां अध्याय 3रा वचन, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? और 9वां, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की विधियों को जो मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य ने ठहराई है। But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. और ये मनुष्य की विधियां, जब उसकी आंखें खुली तो उसने इस अंतर को भी महसूस किया कि ये धर्मी जो ये So when his eyes were opened, I'm sorry about this. When his eyes were opened, the first thing he realized was, तो उसने इनकी शिक्षाओं को समझा कि ये क्या शिक्षाएं ये दे रहे हैं। Suddenly understood their teachings, that what are they teaching? और एक फरीसी से इस तरह से बात करना
एक आम यहूदी के लिए संभव नहीं था, वो इस तरह से उससे वाद विवाद नहीं कर सकता था, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि वो किस तरह से वाद विवाद करता है उनसे. Because a normal Jewish person could never talk to a Pharisee like this. हम देखेंगे इसको 28 पद में. And if we see the 28th verse, 15:28, सॉरी, मैं 24 से पढ़ना चाहूँगा. I would like to read from 24th. तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा. But he answered, okay, 24th, no? जी जी. 15. But he answered and said, I am not sent. Okay, this is. यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय 24 पद. Okay, we are going back to John. जी. तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है. John chapter 9 verse 24. Okay. So then again called they the man that was blind and said unto him, Give God the praise, we know that this man is a sinner. उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. मैं एक बात जानता हूँ. One thing I know, मैं अंधा था और अब देखता हूँ. that whereas I was blind, now I see. उन्होंने उससे फिर कहा. Then they said to him again, उसने तेरे साथ क्या किया? What did he to thee? और किस तरह तेरी आंखें खोली? How opened he thine eyes? उसने उनसे कहा. He answered them, मैं तो तुमसे कह चुका I have told you already, और तुमने नहीं सुना. and ye did not hear. आप दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? Wherefore would he hear it again? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? Will he also be his disciples? तो ये बात सुनकर फरीसियों को कितना उनके जो ईगो है, घमंड है, कितनी उसको टक्कर लगी होगी कि ये हमारे से वाद विवाद कर रहा है. So just imagine how hurt the Pharisees or how insulted they might be with this talk. तो वे बुरा भला कहकर बोले. Then they reviled him and said, तू ही उसका चेला है. that thou art his disciple, but we are, yeah. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है. But we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from where hence he is. उसने अर्थात अंधे व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया. The man answered and said unto them, यह तो आश्चर्य की बात है Where herein is a marvelous thing, कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है. that ye know not from whence he is, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी. and yet he hath opened my eyes. हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, Now we know that God heareth not sinners. परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो But if any man be a worshipper of God, और उसकी इच्छा पर चलता हो and doeth his will, तो वो उसकी सुनता. him he heareth. अब ये जो 31वां पद है, ये इस अंधे ने, So the 31st verse, the blind man, ये उसने भजन 68 का 18 जो है यहाँ पे कोट किया है. so he has quoted Psalm 68:18. जहाँ पे लिखा है कि यदि मन में मैं अनर्थ विचारता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता. So where it says that if I think evil thoughts, God will not hear me. तो हम देखते हैं कैसे ये अंधा जो है कितने हियाव के साथ जो है फरीसियों से वाद विवाद कर रहा है. So here we see this blind man boldly talking to Pharisees, मानो वो उनको उपदेश दे रहा है, वचन से समझा रहा है. as if he is actually giving them a message and making them understand from the word. और 34 पद में लिखा है, And the 34th verse says, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and doest thou teach us? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया. And they cast him out. कहाँ से निकाल दिया? उस आराधनालय से. So from the temple they cast him out. आराधना से उसे बाहर निकाल दिया. So they took him out, or they cast him out. तो इस व्यक्ति के जीवन पे हमने जो प्रभाव देखे, So the influences we saw on this man's life, उसमें इसे कीमत भी चुकानी पड़ी अपने विश्वास के लिए. so he had to pay a cost for his faith. उसे मंदिर से निकाल दिया गया, He was thrown out of the temple, समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, and he was thrown out of the society.
परंतु वो विश्वास के लिए अपने खड़ा रहा। But he stood for his faith. उसने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। He did not deny his faith. यहूदी फरीसी उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि जो चमत्कार तुझ पे किए गए हैं उसका तू इनकार कर दे। And they were pressurizing him that you deny the miracles which have happened in your life. इसलिए वो उसको कह रहे थे कि तू परमेश्वर की स्तुति कर, And they were telling that praise the Lord क्योंकि परमेश्वर ने तेरी आंखें खोली है, इस व्यक्ति यीशु ने नहीं खोली है। because God has opened your eyes and not Jesus. और वो यीशु को पापी ठहरा रहे थे। And they were calling him a sinner. They were calling Jesus a sinner क्यों? क्योंकि उसने सबत के दिन उसकी आंखें खोली थी। because he had opened their eyes on a Sabbath. तो सबत के दिन मट्टी सानना ये भी उन्होंने कार्य में जोड़ रखा था कि ये कार्य है। So even making some clay on a Sabbath was also considered a work for them. तो जैसे हमने मत्ती का 15वां अध्याय 3 पद और 9 पद में देखा था, And as we saw in Matthew 15, 3 and 9, कि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके उन्होंने सिखाया था, जोड़ दिया था उसको। so it was human traditions which were joined to God's word. वास्तव में सबत के दिन ये था कि जो काम आप करते हो, जो आपका रोजगार है, उसे आपको नहीं करना है। So the principle behind was that whatever you do for a living, you should not do on Sabbath. परंतु ये इस तरह के काम करने के लिए कोई मनाही नहीं थी। But these kinds of works were not asked to be stopped. इन्होंने अपनी धर्म विधियां बना ली थी। They had made their own traditions. इसलिए वो उसे कह रहे थे कि तूने सबत के दिन की व्यवस्था तोड़ी है, तू पापी है। And that is why they were telling that you're a sinner and you broke the Sabbath. तो इस तरह से इस मनुष्य के जीवन में ये प्रभाव हुआ, और दूसरा प्रभाव जो है उसके माता पिता पे हुआ। And the third effect happened on his parents. और माता पिता पे ये प्रभाव हुआ, And the kind of effect happened on the parents was कि वो यहूदियों से डरते थे, that they were scared of Pharisees. वो समाज से डरते थे, They were scared of the society. वो यीशु मसीह को मसीहा कर के मानने के लिए तैयार नहीं थे। They were not ready to accept Jesus as a Messiah. क्योंकि यदि वो यीशु को मसीहा मान लेंगे Because if they accept Jesus as the तो Messiah, वो उनको आराधनालय से निकाल देंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे, and if they throw him out of the society और and वे temple, अकेले पड़ जाएंगे। so they'll be all alone. They'll be left alone. तो उनके अंदर एक भय आ गया, डर आ गया, मनुष्य का डर। So there was a fear of man in them which entered. नीति वचन की किताब उसका 29वां अध्याय, प्रोव्स चैप्टर 29 वर्स 25। Yeah, so Proverbs 29:25 we see. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. तो ये इन्होंने मनुष्य का भय खाया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। So here the word says that it becomes a snare. Fear becomes a snare. और इस प्रकार से उन्होंने मसीहा का इनकार कर दिया। So that's how they rejected the Messiah. अब देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से मसीह का इनकार करता है। And we see that how a person or a human being rejects Christ. यशायाह की किताब उसका 51वां अध्याय, Isaiah 51 we will see. उसका 12वां वचन, And the 12th verse. Isaiah 51:12, right? यस, आइज़िया 51:12। Okay. मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। Even I am he that comforteth you. Who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and the son of man which shall be made as grass? परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शांति दाता तो मैं हूँ, तुझे संभालने वाला, तुझे शांति देने वाला तो मैं हूँ, तू मनुष्य से क्यों भय खाता है। And the scripture says that God says that I am your comforter. Why are you afraid of man? और ऐसे मनुष्य से जिसके लिए वचन कहता है जो मुरझाने वाला है। And especially a man, we know that a man would wilt
और जो एक दिन मर जाएगा, who would die one day, क्योंकि हमारे प्राण उसी के हाथ में हैं। because our life is in his hands only. पर उसके माता पिता जो थे वो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते थे। But his parents were not worried about God. अगर वो परमेश्वर का डर भय मानते तो वो प्रभु के लिए खड़े होते। If they were actually afraid of God rather than men, then they would have stood up for God. कई बार जो नए शुरुआत में विश्वास में आते हैं तो वो कई बार अपने परिवार के लोगों से डर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से डर जाते हैं। Many times people who come into faith get worried or get scared of their parents and their relatives. और कई बार किसी की हम पर्सनैलिटी देख के डर जाते हैं, कोई लंबा चौड़ा है, कद काठी है, तो हम उसके सामने गवाही देने को रुक जाते हैं। And many times if the man is tall and hefty, we tend to get scared and we do not give testimony. इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य का डर फंदा हो जाता है। फंदा मतलब गले में जब पड़ गया तो फिर आदमी उससे बचता नहीं। तो ये एक फंदा है। So it's a snare, that is what the word says, that once it falls into our necks, it really chokes us. ये एक प्रकार का फंदा है। So this is a kind of snare. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा शांति दाता हूँ। And God says that I am your comforter. तुम मुझ पे भरोसा रखो। You trust in me. परंतु जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये हियाव आते जाता है। But as we grow in the word and as we grow in the Lord, we start becoming bold. क्योंकि जब हम चेलों को देखते हैं कि यीशु मसीह जब मृत्यु के बाद उसका स्वर्गारोहण हो गया था, चेले अकेले थे। So after Jesus' ascension, we know that the disciples were alone. और वो डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठे थे। And they were sitting behind closed doors. परंतु जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, But then when they got the Holy Spirit or they received the Holy Spirit, जब उन्होंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा, अनुभव किया, and when they saw the living Christ in their own life, उनके अंदर एक हियाव आ गया। so there was a boldness which entered them. जब शास्त्री और फरीसियों ने, हम प्रेरितों के काम में पढ़ते, उन्हें पकड़ा, And in Acts we see that Pharisees and scribes, when they caught them, तो उन्होंने कहा इन्हें ये इतना ज्ञान कहाँ से आया, ये तो अनपढ़ है। so where did they get all this wisdom? They are uneducated people. ये इतना हियाव इनमें कैसे आया? Where did they get this boldness from? ये हियाव आएगा जब हम उसमें जुड़ते हैं, उसमें बढ़ते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हमें हियाव मिलता है। So we get this boldness when we get connected to Him. तो इसके माता पिता ने उसका पलड़ा उससे झाड़ लिया, मतलब उससे किनारा कर लिया, उसको छोड़ दिया। So in a way his parents left him, abandoned him. उन्होंने कहा, And they said, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, and they answered, मैं यूहन्ना 9:20 पढ़ रहा हूँ। I am reading John 9:20. उसके माता पिता ने उत्तर दिया, And they answered, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है we know that he is our son, और अंधा जन्मा था, and he was born blind. परंतु यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, But we do not know now how he sees. और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। Neither do we know who opened his eyes. वह सयाना है, He is grown up now. उसी से पूछ लो, You better ask him. वो अपने विषय में आप ही कह देगा। He will talk about himself. उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया। So they actually abandoned him and didn't stand with him. चाहिए तो था And actually they should have, कि वो खोजते that they would have searched, कि किसने तेरी आंखें अच्छी की, that who opened your eyes, उसको मिलते, उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करते, and would have met the person who did that and would have thanked him. परंतु उसने, माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया। But the parents left him. आज भी कई जो परिवार से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति प्रभु में आता है, So even today when a person, a single person or two people come to the तो Lord, उसको उसके घर वाले छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं। so the parents leave them or cast them out of their home. मैं पिछले दिनों एक पास्टर की गवाही सुन रहा था। A few days back I was listening to a pastor's testimony. वो कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं 7वीं 8वीं और 9th में जब मैं पढ़ रहा था, So when I was in 7th, 8th or 9th, तो उसे सिगरेट पीने और तमाम
उल्टे सीधे काम, मारा पीटी और ऐसे काम जिससे माता पिता परेशान हो जाएं, स्कूल वाले परेशान हो जाएं, वो करता था. So he used to do things like smoking and getting into fights and do things which would really trouble the parents and the school. और उसे स्कूल से निकाल दिया गया. So he was taken out of the school or thrown out of the school. अपना घर छोड़ के भी भाग गया था. And he left his house and he ran away. परंतु माता पिता ने उसे ढूंढ के फिर लाया. But the parents looked for him, found him and brought him back. और एक बार फिर वो भाग गया. And he ran away again. जब वो इस बार भागा, But this time when he ran, तो उसे प्रभु का वचन मिला. he got God's word, he received God's और word. उसने अपना जीवन प्रभु को दिया. He found God's word and he gave his life to Jesus. और उसका जीवन बदल गया. उसकी बुरी आदतें उसने छोड़ दी. His life was changed and he left all his bad habits. और जब वो खुद घर आया, And when he returned himself to his house, तो इस बार उसके माता पिता ने so this time his parents, जब उससे पूछा, when they asked him, तो जब उसने ये बताया कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, and when he told them that I have accepted the Lord, तब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया. so then they threw him out of the house. वो अब तक घर से भागता था. Till now he जब वो himself ran away बुराई भी करता था, and he was into bad things. तब भी माँ बाप उसको रखना चाहते थे. Even then the parents wanted to keep him. लेकिन जब उसने बुराई छोड़ दी, But now when he left all his evil work, तो उसको घर से निकाल दिया गया. so they threw him out of the house. तो प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है, So when God's word enters our जब life हमारे जीवन में काम होता है, and a work happens in our life, जब जीवन बदल जाता है, when our life is changed, तो अलग अलग क्षेत्रों में उसकी प्रतिक्रिया होती है. so we can see the reaction in different areas of our life. कई सकारात्मक होते हैं और कई नकारात्मक होते हैं. There are positive effects and there are negative effects. यहाँ पर हमने देखा कि उसके माता पिता ने उसे घर से छोड़ दिया, उसका साथ, उसका पल्ला झाड़ दिया. So here we see that the parents actually moved away from him or threw him out. और लिखा है And it is written, कि जब यीशु मसीह को पता चला so when Jesus came to know about it, कि उसे बाहर निकाल दिया गया है, that he has been thrown out or he has been left abandoned, तो यीशु मसीह उससे मिला. so Jesus met him. प्रभु कहता है, So God says समाज तुम्हें ठुकरा सकता है, that the society can reject you, घर वाले तुम्हें ठुकरा सकते हैं. the family can reject you. यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय And John 6 we see 37 पद, 37th verse, कि जो कोई मेरे पास आएगा that whoever comes to me, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा. I will never cast them out. प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, I will never cast you out. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never leave you. क्योंकि उसने कीमत चुकाई अपने विश्वास के लिए, अपने खड़े होने के लिए. He paid a cost for his faith and to stand. हमें भी जो है अपने विश्वास के लिए खड़े होना चाहिए. So we also have to stand for our faith. मसीही जीवन में यही बात है कि हमें अपने विश्वास में स्थिर, मजबूत और उसके लिए खड़े होने वाला सीखना चाहिए. Because in Christian life we have to stand for our faith. We have to learn to do that. शास्त्री फरीसी उसे बहुत प्रेशर कर रहे थे कि वो उनके साथ समझौता कर ले. And Pharisees were trying to have a compromise on the parents वो मसीह का इनकार करे, so that he will deny Christ. परंतु उसने नहीं किया. But he didn't do that. और फरीसियों के ऊपर भी हम देखते हैं प्रभाव पड़ा. And we see an effect on the Pharisees also here. फरीसियों पर भी इस आश्चर्य कर्म का प्रभाव हुआ. And this miracle had जैसा an effect. 9:24 में लिखा है, Like in 9:24 we read, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर. so they asked the blind man to come for the second time and said, praise God. उन्होंने उसे 2 बार बुलाया They asked him to come twice. और वे इस आश्चर्य कर्म के ऊपर वो विश्वास नहीं करना चाह रहे थे. And they were not ready to believe on this miracle. और वे उसे दबाना चाह रहे थे. And they wanted to suppress it. यहाँ पर हम प्रभाव देखते हैं किस प्रकार का है. And here we see the effect, what kind of effect is there. तो किस तरह से लोग जो है That how people
इस चंगाई को saw this healing, और बातों के साथ जोड़ के उसे बदल देते हैं, and they join it with other things and change it. परंतु But जिसके जीवन में चंगा हुआ था वो अपने स्थान में स्थिर रहा. but the one who received a miracle in his life stood firm. जब उसे आराधना से निकाल दिया गया, When he was thrown out of the temple, वो प्रभु उससे मिला, the Lord met him, और प्रभु ने उससे सवाल किया, and the Lord asked him, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? do you believe on the Son of God? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? And he answered that, who is he that I would believe on him? यीशु ने उससे कहा, And Jesus told him तूने उसे देखा भी है, that you have seen him also, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है. and the one who is talking to you right now. उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं. And he said, I believe, O Lord. और उसने उस पर विश्वास किया, And he believed on him, और उसे दंडवत किया. and he bowed down. दंडवत के लिए जो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश बाइबल में मेरे ख्याल से वर्शिप लिखा गया है. अगर हम पढ़ेंगे, So the word which is mentioned in the Bible is worship. chapter 9 verse Chapter 9 verse 38. that he worshipped him. It says, and he said, Lord, I believe, and he worshipped him. आराधनालय में जिसकी आराधना होती है वो बाहर है, So the one who is worshipped in the temple is और actually out of the temple, और वो आराधना बाहर कर रहा है. and he is worshipping him out. प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करते हुए कहा, 4 अध्याय में, And in John 4 we see that when Jesus talked to the Samaritan woman, कि न तो तुम इस पहाड़ पे आराधना करोगे न उस मंदिर में, that neither would you worship on this mountain or in the temple. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when he shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, Ye worship ye know not what. और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं. We know what we worship for salvation. Yeah. हमारा हाल पहले यही था, जिसे हम जानते नहीं थे उसकी आराधना करते थे. We were like this. We worship the one whom we didn't know. वो हमारा आत्मिक अंधापन था. And that was our spiritual blindness. हमारी आत्मिक आंखें बंद थी. And our spiritual eyes were closed. अंधा व्यक्ति टटोलता है ना, जब उसको आप अंधे को देखो तो ऐसे ऐसे करके टटोलता है. So as when we see a blind person, he feels his way. वो अपने सीधे ऑब्जेक्ट तक पहुंचता नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है, वो अंधा है. So he cannot go straight to the object because he cannot see. उसी तरह हम आत्मिक अंधे थे. And we were spiritually blind like जहाँ that. चाहते वहाँ, जैसा हमें फिरा देते हैं वहाँ चाहते थे. And the way we were turned or the side we were turned to, we used to go on that side. इफिसियों का 2 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, If we see Ephesians 2:1-3, कि हम पाप में मरे हुए थे that we were dead in our sins और मन और शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते थे, and walked according to the bodily lusts. ये हमारा आत्मिक अंधापन था. This was our spiritual और blindness. ये क्यों था? क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में और 4 पद में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है. Because 2 Corinthians says that the God of this world has blinded them. और आत्मिक अंधी आंखों से हम उस जीवते और सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाए. So from our spiritual or spiritually blind eyes, we could not understand the living God. परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने आप को जाहिर किया. But God revealed himself to us. इस व्यक्ति से जब प्रभु यीशु दोबारा मिला, So when और Jesus met him for the second time,
तो प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है? So the Lord asked him that do you believe in the Son of God? और उसका उत्तर एकदम सही था कि हे प्रभु, वो कौन है? And his answer was very correct, that who is he? वो जानता नहीं, मतलब मैं जानता नहीं कौन है। And because he didn't know who was he. परमेश्वर कौन है उसको जानता नहीं। He didn't पता know नहीं who कि God कौन was. सच्चा खुदा है। Yeah. हम भी ऐसे ही थे। And we were like that. हम लूका के 10वें अध्याय और 22वें पद में पढ़ते हैं। And if we go to Luke 10:22, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र। all things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he is to whom the Son will reveal him. और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। And he to whom the Son will reveal him. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। So Jesus revealed himself to him that I am God. क्योंकि ये जो आश्चर्य कर्म था, Because this miracle, परमेश्वर की सिवाय कोई नहीं कर सकता था कि जो जन्म से अंधा उसको वो दृष्टि दे। no one else could have done this miracle except God. और इसने जो उसे दंडवत किया, And when he worshipped him, उसने उसकी आराधना की, and he worshipped him, परमेश्वर ने उस आराधना को यीशु मसीह ने ग्रहण किया। and Jesus accepted that worship. इनडायरेक्टली So in a way, उसने he, अर्थात यीशु ने ये कबूल किया कि मैं देहधारी परमेश्वर हूँ। that I am the incarnate God, क्योंकि Jesus accepted that. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय है और 25-26 में हम देखते हैं Because Acts 10, 24-25 we see, 25-26 we see, कि जब कुरनेलियुस के घर में पतरस प्रचार कर रहा है when Peter was preaching in Cornelius's house, और वो पतरस के चरण छूने जाते हैं, उससे प्रणाम करते हैं, and they try to touch Peter's feet. तब पतरस ने उन्हें मना कर दिया कि मैं तो तुम्हारे समान मनुष्य हूँ। So Peter refused them. He didn't let them touch his feet because he said, I am a man like you. उसने He अपनी आराधना करने नहीं दिया उन्हें। didn't let them worship him और himself. पौलुस के साथ भी प्रेरितों के काम में ऐसा ही हुआ एक जगह पे। Even with Paul, something like this happened. तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उसकी आराधना ग्रहण किया। But here Jesus accepted his worship. उसने ये साबित कर दिया इस बात से कि वो देहधारी परमेश्वर उनके मध्य में है। And he proved that he is the incarnate God who is among them. तो जब हमारा अंधापन दूर हो जाता है, So when our spiritual blindness हमारी is, आत्मिक आंखें खुल जाती है, and our spiritual eyes are opened, तो हम स्पष्ट देखने लगते हैं कि वास्तविक परमेश्वर कौन है। so we start seeing very clearly that who is the real chapter and 13th verse. पहला कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वां पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। That he delivered us from the kingdom of darkness and gave us entry into his beloved son's light or kingdom. 14th में हम पढ़ते हैं उसी में आगे, जिसमें लिखा है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। And where we get the deliverance or forgiveness of our sins. हमें उसने अपनी इच्छा से, अपनी करुणा से हमारा उद्धार किया। So out of his will and out of his mercy he gave us हमें अंधकार salvation, के राज्य से छुड़ाकर and he delivered us from the kingdom of darkness, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, ज्योति में उसने हमें सहभागी किया। and he joined us, or he made us enter into his son's kingdom of light. प्रभु यीशु मसीह ने 8वें अध्याय के 12 पद में कहा, And in 8:12 he said, कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। I am the light of the world, and whoever follows me wouldn't walk in और darkness. सार्वजनिक रूप में इस प्रकार का आश्चर्य कर्म करके जो यीशु मसीह ने कहा था उसको उसने प्रमाणित किया। So publicly what kind of miracle he did, he proved it. प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी, जो वो कहता था उसे वो करता था। And Jesus always did what he said.
और ये आत्मिक अंधापन And this spiritual blindness मनुष्य के जन्म से पापी होने का एक चित्रण है. and it's a picture of a man or a person born a sinner from birth. और अंधे जो देखने लग जाते हैं And blind who start seeing, वो अपनी असहाय दशा and they in their helpless state और अपनी आवश्यकता, and their needs अपनी अयोग्यता and their incapability उसको मानकर or their disability, and they accept that, वे प्रभु के पास उद्धार के लिए आते हैं. and they come to the Lord for salvation. परंतु जो But those देखते हैं who see परंतु अहंकार and they are full of pride और सेल्फ राइचियसनेस मतलब स्वयं की धार्मिकता, and because of self-righteousness, जब वो इसमें फंसे रहते हैं तो वो वास्तव में अंधे हो जाते हैं. so they are trapped into these two things and they actually become blind. इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, आखिरी पद में हम पढ़ते हैं जहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, So Jesus said to them, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते. so if you were blind, then you wouldn't have considered to be a sinner. परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है. But because now you say that we can see, your sin stands. अगर वो वास्तव में अंधे होते जिस तरह से वो अंधा था, If they were actually blind the way he was, तो वो उन आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पाते. they wouldn't have seen those miracles. तो वो कह सकते थे कि हाँ हमने नहीं देखा, तो उन्हें कहने के लिए एक जवाब था. So they had something to say. पर वो देखते भी थे आंखों से, So they could see from their eyes, with their eyes. परंतु उनके अहंकार ने, उनके घमंड ने उन्हें जो है उसके आश्चर्य कर्मों पे विश्वास करने के लिए रोक दिया. But their pride had stopped them from believing in the miracle. और which ये he did. चीज़ है जो हमें प्रभु के राज्य में जाने से, उद्धार पाने से और प्रभु के साथ संगति करने से रोक देती है. And many times these things actually stop us from entering God's kingdom and to have fellowship with Him and to be blessed. इस मनुष्य में अंधे में आज्ञाकारिता थी. And this blind man had obedience. इसने आज्ञा मानी यीशु की, He obeyed उसने Jesus. जाके धोया He washed his eyes, और वो उसके अंदर कृतज्ञता थी. and there was gratefulness in him. उसने उसे दंडवत किया. And he worshipped him. He bowed down, वो अपनी गवाही के लिए दृढ़ रहा and he stood for his testimony. और अपनी गवाही के प्रति उसको जो नकारात्मक प्रत्युत्तर मिले उसे सहने के लिए भी वो तैयार रहा. And the negative things which he had to face because of his testimony, उसको he समाज was- से निकाला जाना, that being thrown out of the जो society, उसके सबसे नजदीक थे माता पिता, उसने उसको छोड़ दिया. and the closest people he had, his parents, they left him. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि ये एक माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे न छोड़ूंगा. That a mother can forgive a nursing child, but I will not leave तो you. जब हम प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, So when we stand for Jesus, प्रभु हमें संभालेगा, the Lord will look after क्योंकि us. उसने स्वयं कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा. Because he himself has said that I will not leave the person who comes to me. प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. So God may bless us, and let's pray. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं. Father, we thank you, O Lord. सच में पिता, आपने हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर किया And really, O Lord, you have removed our spiritual blindness. और तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, And through your Son, Lord Jesus Christ, जो जगत की ज्योति है, who is the light of the world, हमारे जीवन में उजाला किया. and you brought light into our lives. तूने हमें अंधकार के राज से छुड़ाकर And you delivered us from the kingdom of darkness उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. and gave us entry into your beloved Son's kingdom. प्रभु जी, Father, हम आपको धन्यवाद देते हैं. we thank you. हमारी सहायता करें, Help us हमें वैसा हियाव दें, and give us that kind of boldness हमें वो सामर्थ्य दें and give us that strength कि हम आपके लिए खड़े रहें. so that we can stand for you. हमें वो सामर्थ्य दें And give us the strength कि जिन बातों को हमें ना कहना है उसको हम ना कह सकें, that things which we have to say no to, we'll be able to say no to. और जिन बातों को हाँ कहना है उसकी सामर्थ्य हमें दे.
And the things which we have say yes to, give us the strength to do that. प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के लिए और आज की संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। And we thank you for your word and today's fellowship, O Lord. और अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। And we submit ourselves into your powerful hands. हमारी सहायता कर, हमारे साथ हो। Help us and be with us, O Lord. हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। And we ask this in our Savior, Lord Jesus Christ's name. आमीन। Amen. क्या अद्भुत संदेश था ना। यस यस, आपने एंजॉय किया। यस। अपने स्थानों पे खड़े थे। एक समय था हम भी अंधे थे, पर परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली। यस, उसने हमें नया जीवन दिया। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइक सच में गॉड ने मुझसे भी बातें की, आशा करता हूँ आपसे भी की। क्या आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। जाइए कहिए अपने पड़ोसी से, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। I was blind but now I can see who is God. हमने उस जीवित परमेश्वर को देखा है और उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आए मिल के गाते हैं, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग।